Morning students, myself Dr. Suman Sharma. You know students, on the last turn I taught you reduction of anhydrides. In continuation of reductions, today we start reduction of epoxides. First of all, we know about the epoxides. An epoxide is a cyclic ether with a 3 atom ring. This ring approximates an equilateral triangle which makes it strained and hence highly reactive, more so than other ethers, right? They are produced on a large scale for many applications. In general, low molecular weight epoxides are colorless and non-polar and often volatile, right? Epoxides क्या होते हैं? An organic compound whose molecule contain a three-membered ring involving an oxygen atom and two carbon atoms, right? और यदि हम इसको हिंदी में बताना चाहें तो 3 सदस्यीय 3 मेंबर्ड वलय युक्त चक्रीय ईथर इपॉक्साइड्स कहलाते हैं. IUPAC नॉमेनक्लेचर में इनको ऑक्सीरेन कहते हैं. सरलतम इपॉक्साइड का सबसे साधारण एग्जाम्पल है इथिलीन ऑक्साइड, राइट? हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ epoxide. It's a generic epoxide, right? Now ring opening of epoxides with basic nucleophiles. Okay, epoxide अणुओं में 3 मेंबर्ड रिंग 3 सदस्यीय वलय हाई स्ट्रेन के कारण न्यूक्लियोफिलिक अटैक के प्रति ये रिएक्टिव होते हैं और जो रिंग है वो इजीली ओपन हो जाती है, जो वलय है वो सुगमता से खुल जाती है. इसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, राइट? रिएक्शंस ऑफ इपॉक्साइड्स अंडर बेसिक conditions proceed via an SN2 reaction mechanism, right? प्रबल क्षार जैसे एल्कोक्साइड या हाइड्रोक्साइड ऋणायनों की इपॉक्साइड के साथ अभिक्रिया से 3 सदस्यीय वलय खुल जाती है और ये अभिक्रियाएं जल या अल्कोहल के अंदर की जाती हैं. इसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं. रिएक्शंस ऑफ इपॉक्साइड्स अंडर बेसिक कंडीशंस proceed via an SN2 reaction mechanism, right? Here is the reaction. Attack of nucleophile at least substituted position, right? It's a first condition. Note that stereochemistry at C2 carbon is inverted can also use RO minus, right? Grignard's reagents or organolithium reagents and lithium aluminium hydride, right? Now opening epoxide with base, right? हम ये कह रहे हैं कि epoxide की opening यदि बेस के प्रेजेंस में करवाई जाती है तो इसका किस तरह से फंक्शन होता है, ये किस तरह से काम करता है, हाउ इट वर्क्स. इन द लास्ट slide we discuss the reactions of epoxide under acidic conditions. ये हम लोग छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं. and so how they resemble the 3-membered ring, family of alkene mechanism, right? We left off by nothing that the reaction of the epoxide with NaOH in water gave a different product than that obtained through
H3O plus, right? Therefore, it must go through a different mechanism. Our question is, how does this reaction work, right? Nothing the fact that the nucleophile OH minus attacks the epoxide at the least substituted position C2, right, and results in inversion of stereochemistry at this position. Okay, our best evidence is consistent with this reaction proceeding through the familiar SN2 mechanism, followed by a transfer of proton from the weakly acidic solvent water to the alkoxide, right, providing a neutral alcohol, right. Here is the formation of alcohol. ये हमने यहाँ पर रिएक्शन देकर शो कर रखा है. The best explanation for the observed product is that it proceeds through an SN2 reaction mechanism followed by a protonation giving the neutral alcohol, right. Here is the complete reaction. Along the same lines, if epoxides are treated with alkoxides in alcohol solvent, they lead to essentially the same reaction. Okay, here is an example with NaOCH3. Note that the proton must come from CH3OH here, right. हियर जो है यहाँ पर प्रोटोन जो है वो कहाँ से आता है, CH3OH से, जबकि पहली रिएक्शन के अंदर हमने देखा था कि जो प्रोटोन है वो H2O से आता है. एडिशन ऑफ एल्कोक्साइड्स प्रोसीड्स वाया द सेम टू स्टेप प्रोसेस, राइट. हियर इज़ द रिएक्शन. ये हमने इसको रिएक्शन देकर शो कर रखा है, राइट. एग्जैक्ट सेम मैकेनिज्म एज विद NaOH. It's okay to have CH3OH present with NaOCH3 because they are in equilibrium, right. NaOCH3 is not irreversibly protonated by CH3OH. Okay. Now अब हम देखते हैं, ये तो हमने एक जो है रिंग ओपनिंग देखी इपॉक्साइड की. अब आता है रिडक्शन ऑफ इपॉक्साइड्स. Epoxides can be reduced in two different ways. First is the deoxygenation of epoxides to alkene, right? And second is the reductive cleavage of epoxides to alcohol. पहला जो है रिडक्शन प्रोसेस, उसके अंदर डीऑक्सीजनेशन इपॉक्साइड का होता है और एल्कीन का फॉर्मेशन होता है. और सेकंड जो रिडक्शन प्रोसेस होता है उसमें रिडक्टिव क्लीवेज ऑफ इपॉक्साइड्स टू अल्कोहल, वहाँ उसमें जो है अल्कोहल्स का फॉर्मेशन होता है. अब हम इन दोनों को वन बाय वन यहाँ पर देखते हैं. डीऑक्सीजनेशन ऑफ इपॉक्साइड्स टू एल्कीन, राइट. Alkenes are produced from epoxides via a complete deoxygenation process. Phosphorus reagents are particularly effective for this purpose, right. The best reagent is PH3P यानी triphenylphosphine and triethoxyphosphine. Phosphorus reagents are effective because phosphorus have strong affinity for ऑक्सीजन, राइट. इसलिए यहाँ पर हम इस कैटलिस्ट को इसलिए काम में लेते हैं. यहाँ पर ये रिएक्शन हमने बता रखी है और यहाँ पर जो है एल्कीन्स बन जाती हैं. ये इसमें रिएक्शन में हमने शो कर रखा है, राइट. कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. अ नाइस मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग epoxides to alkene with high level of stereospecificity was reported in the 1970s by E. Vedes, who used LiPPH2 to open epoxides. Subsequent reaction in situ with methyl iodide formed a betaine, right.
this butane on syn elimination gives alkene. Here is the reaction. It's a cis epoxide. Catalyst is LiPPH2 and CH3I, और यहाँ पर हमको E एल्केन मिलता है, राइट। उसके बाद में यहाँ पर ये है ट्रांस इपॉक्साइड, राइट, ये है ट्रांस इपॉक्साइड। सिमिलर जो है रिएक्शन कंडीशन फॉलो की जाती है, तो यहाँ पर हमको Z एल्केन मिलता है, राइट। इन दिस रिएक्शन सिस इपॉक्साइड गिव्स E एल्केन एंड ट्रांस गिव Z एल्कीन्स, राइट। सिस इपॉक्साइड से हमको E एल्कीन मिलता है, जबकि ट्रांस इपॉक्साइड से हमको Z एल्कीन मिलता है। दस द रिएक्शन इज स्टीरियो स्पेसिफिक। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है वो स्टीरियो स्पेसिफिक है। द रिएक्शन इज स्टीरियो स्पेसिफिक बिकॉज द इपॉक्साइड ओपन विद स्ट्रिक्ट इन्वर्जन एंड द एलिमिनेशन इन सिन पेरीप्लेनर, राइट। यहाँ पर हमने इसको स्कीम 1 के अंदर शो कर रखा है। हियर इज़ द स्कीम, राइट। ये इन्वर्जन प्रोसेस होता है यहाँ पर। उसके बाद जो है ये हमको इंटरमीडिएट मिलता है, फिर CH3I के साथ ये रिएक्ट करता है, ठीक है। ये यहाँ पर इसका फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर टोटल जो है हमने बता रखा है कि ट्रांस इपॉक्साइड से हमको Z एल्कीन मिलता है। ये स्कीम 1 है। दिस रिएक्शन इज़ वेरी यूजफुल since it is the reversal of epoxide of alkenes, and since both these reactions when combined represent protection of a double bond, right? Because the epoxidation of alkene and the deoxygenation of epoxides both are stereospecific. One can use the oxidation and reduction protocol to invert the geometry of an alkene, right? Here is the reaction. It's a alkene. In presence of meta CpBa we get this compound. फर्दर जो है इसका रिडक्शन होता है LiPPH2 के साथ में एंड CH3I के साथ में, और वापस से यहाँ पर एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है, और ये क्या है, ट्रांस एल्कीन, राइट। रिडक्शन ऑफ इपॉक्साइड्स टू एल्कीन इज ऑल्सो accomplished by refluxing with zinc dust and acetic acid or with zinc and copper couple in ethanol by heating at 65 degrees centigrade with titanium dichloride prepared in situ from titanium trichloride and lithium aluminium hydride, and by treating with chromous chloride ethylene diamine complex in DMF, right? अब सेकंड जो रिडक्शन प्रोसेस है वो क्या है, रिडक्टिव क्लीवेज ऑफ इपॉक्साइड्स टू अल्कोहल, राइट। reagents of choice for reduction of epoxides to alcohol are hydrides and complex hydrides, right. A general rule of regioselectivity is that the nucleophilic complex hydrides such as lithium aluminium hydride approach the oxide from the less hindered side, thus गिविंग मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कोहल्स, राइट। यहाँ पर हमने इसको स्कीम 2 के अंदर समझा रखा है, राइट। इट्स अ इपॉक्साइड रिएक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। फर्स्ट वी गेट दिस प्रोडक्ट, देन SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म प्रोसीड एंड वी गेट दिस प्रोडक्ट, देन हाइड्रोलिसिस, यहाँ पर अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है, राइट। As far as stereochemistry is concerned, aluminium hydride yields trans product, right? यहाँ पर हमको ट्रांस प्रोडक्ट मिलता है यदि हम एल्यूमिनियम हाइड्राइड काम में लेते हैं, राइट। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये हमने
इट्स अ इपॉक्साइड। जब इसकी रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ईथर एज ए सॉल्वेंट काम में लेते हैं तो यहाँ पर बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो ट्रांस प्रोडक्ट होता है, राइट। यहाँ पर ट्रांस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ये ट्रांस अल्कोहल बनता है यदि हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है कैटलिस्ट काम में लेते हैं। एलाइल अल्कोहल्स ऑन इपॉक्सीडेशन गिव epoxy alcohol, right? The epoxy alcohols so generated may be reduced selectively to give a range of either 1,2 or 1,3 diols depending on the nature of reducing agent, right? यहाँ पर हम देखते हैं इस इपॉक्सी रिडक्शन ऑफ इपॉक्साइड में यदि हम यहाँ पर रिड्यूसिंग जो एजेंट है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते हैं तो इसका ये जो है इस कैटलिस्ट का जो है ये किस पे डिपेंड करता है कि यहाँ पर हमने 1,2 या 1,3 डायोल लिया है, उस पर जो है ये डिपेंड करता है कि जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमारा 1,2 होगा और 1,3 होगा, हमने किस तरह का इपॉक्साइड काम में लिया है, राइट। टू इपॉक्सी अल्कोहल सो जनरेट में बी रिड्यूस सेलेक्टिवली टू गिव अ रेंज ऑफ आइदर 1,2 एंड 1,3 डायोल्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ रिड्यूस। हम यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा काम में ले रहे हैं उस पर ये डिपेंड करेगा कि जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो 1,2 डायोल है या 1,2 1,3 डायोल है। यहाँ पर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड काम में ले रहे हैं और यहाँ पर हमने जो है कैटलिस्ट DiBAl काम में लिया है तो हमको इस तरह के डायोल्स मिलते हैं, राइट यहाँ पर। और ये हमने सोडियम बिस 2-मिथॉक्सी इथॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड काम में लिया है तो यहाँ पर 1,3 डायल मिलता है और यदि हम कैटलिस्ट DiBAl काम में लेते हैं तो हमको इस इपॉक्साइड से 1,2 डायोल फाइनल प्रोडक्ट मिलता है, राइट। तो यहाँ पर भी हमको ये चीज़ जो है वो ध्यान देने वाली बात है कि जब इपॉक्साइड का रिडक्शन होता है तो उसके अंदर जो है किस तरह का हम कैटलिस्ट काम में ले रहे हैं तो बनने वाला जो प्रोडक्ट है उस पर पूरी तरह से निर्भर होता है और उसी के हिसाब से हमको प्रोडक्ट मिलता है, राइट। तो आज हम लोगों ने रिडक्शन ऑफ इपॉक्साइड के बारे में डिस्कस किया है, राइट बच्चों, ठीक। थैंक्स डियर स्टूडेंट्स।